get you all the IPL action in just a bit, but presently, senior Congress leader and senior lawyer Kapil Sibal is addressing a press conference. Let's cut straight across and listen in. 5 जजेस की बैठक तय हो गई है और हमारी जो याचिका है वो 5 जजेस के आगे सुनी जाएगी। किस आधार पे ऑर्डर पास हुआ, किसने पास किया, इसकी हमें जानकारी नहीं थी क्योंकि कोई जुडिशियल ऑर्डर तो था नहीं। तो आज सुबह जब हम कोर्ट में गए तो हमने 7 सवाल कोर्ट के सामने रखे। वो अंग्रेजी में है तो मैं पढ़ दूंगा। पहला, अंडर आर्टिकल 145(3) of the Constitution, if it appears to the Supreme Court that a substantial question of law as to the interpretation of the Constitution arises in any case, then the minimum number of judges required to adjudicate on that issue is prescribed under the Constitution to be 5. मतलब के अगर आर्टिकल 145(3) के अंतर्गत कोर्ट को ये मुनासिब लगे कि कानून की परिभाषा संविधान से जुड़ी हुई है और संविधान की परिभाषा को कोर्ट इंटरप्रेट करेगा, तो फिर वो सुनवाई 5 जजेस के आगे जाएगी। ये हुआ नहीं था क्योंकि ये कोर्ट के सामने मामला आया, ये तो आज सुबह आया, तो 5 जजेस को तो पहले ही रेफर हो गया। दूसरा, रेफरेंस टू 5 जजेस कैन ओनली बी मेड बाय जुडिशियल ऑर्डर। The rules of the Supreme Court do not allow the Chief Justice of India to pass an administrative order to refer a matter to 5 judges on the ground that a substantial question of law as to the interpretation of the Constitution arises in the case. 3. In the present case, there is no judicial order formulating the substantial question of law involving the interpretation of the Constitution, which is required to be adjudicated upon by a Constitution bench. 4. It is assumed, since the petitioners are not privy to any such order, that the concerned authority took the decision that the issues raised in the petition are required to be adjudicated upon by 5 distinguished judges after due application of mind on the issues raised in the petition. The petitioners are entitled to know the authority who on the administrative side passed an order to refer this matter to 5 distinguished judges. 5. If the authority happens to be the Chief Justice of India, against whom a motion of removal on the basis of certain articles of charge was filed and dismissed by the chairman in exercise of powers under Section 3(1)(b) of the Judges Inquiry Act 1968, then the petitioners are entitled to be informed of the order and contend that a copy of the order be furnished to the petitioners before any proceedings take place. 6. If that order has been passed by the Chief Justice of India constituting the bench, then the petitioners seek to challenge the order on such grounds as the petitioners may deem fit. And last, it would be inappropriate for the petitioners to seek any indulgence of this court on the merits of the case till such time as such opportunity is afforded to the petitioners. इसका लबो-लबाव ये है कि हम चाहते थे कि जो भी प्रशासनिक फैसला हुआ है, पहली बात ये है कि किसने किया है, किसने वो फैसला किया है कि ये याचिका 5 जजेस को जाएगी, ये हमें बताया जाए। अगर कोर्ट ने किया होता तो कोर्ट की वेबसाइट पे आ जाता है, क्योंकि कोर्ट का कोई ऐसा निर्णय नहीं था, तो हमने मांग की कि हमें बताया जाए किसने ये ऑर्डर पास किया है। अगर चीफ जस्टिस साहब ने पास किया है तो वो ऑर्डर की कॉपी हमें दी जाए, अगर किसी और ने पास किया है तो उस ऑर्डर की कॉपी हमें दी जाए। लेकिन हमारा संवैधानिक हक है कि हमें पता लगना चाहिए
कि किसने ऐसा ऑर्डर पास किया है, और अगर ऐसे ऑर्डर की कॉपी हमें मिल जाती है तो निश्चित रूप से हम उस पर गौर विचार करके यह तय करेंगे कि उसको हम चैलेंज करेंगे या नहीं। और जब तक वो ऑर्डर नहीं मिलता तो हम बहस कैसे करें। ये बातें हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। उन्होंने इस पे कोई फैसला नहीं किया। हमने मांग की, उन्होंने ये नहीं बताया कि हमें ऑर्डर देंगे, ये भी नहीं कहा हम नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि आप मेरिट्स पे बहस कीजिए। तो हमने कहा कि मेरिट्स पे तभी बहस हो सकेगी जब हमें इस ऑर्डर की कॉपी मिलेगी, क्योंकि संविधान के अंतर्गत कोई ऐसा ऑर्डर हो नहीं सकता जिसको हम चैलेंज न कर पाए। अगर प्रेसिडेंट की इलेक्शन हो तो उसका ऑर्डर चैलेंज होता है, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन से ऑर्डर चैलेंज हो सकता है, प्रधानमंत्री या कैबिनेट का ऑर्डर हो तो वो चैलेंज हो सकता है, प्रशासन का कोई ऑर्डर हिंदुस्तान में किसी भी प्रशासन का हो तो वो ऑर्डर चैलेंज हो सकता है। अगर किसी ने कोई किसी के खिलाफ गलत काम किया हो वो ऑर्डर चैलेंज हो सकता है। अगर किसी पब्लिक अथॉरिटी ने कोई भी ऑर्डर पास किया हो वो ऑर्डर चैलेंज हो सकता है। कि कौन सा ऐसा ऑर्डर है हिंदुस्तान में वो नहीं चैलेंज हो सकता, और अगर कोई ऐसा ऑर्डर है तो हमें बताया जाए। अगर आप कहते हैं कि भाई अगर ये ऑर्डर जिसकी वजह से याचिका को 5 जजेस के सामने पेश किया गया, वो ऑर्डर अगर नहीं चैलेंज हो सकता तो वो भी हमें बता दें, ताकि हम कहें कि हिंदुस्तान में कोई एक ऐसा ऑर्डर है जो कभी चैलेंज नहीं हो सकता। ये मुद्दा सामने आया, और क्योंकि उन्होंने हमें यह नहीं बताया कि ऑर्डर देंगे या नहीं देंगे, तो हमने सोचा कि जब तक वो ऑर्डर नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से हम इस पे कैसे बहस कर सकते हैं पिटीशन पे, तो इसलिए हमने विड्रॉ कर लिया और ये मामला हुआ है। लेकिन एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और बड़ी संजीदगी के साथ रखना चाहता हूँ। हमें किसी के खिलाफ, किसी जज के खिलाफ, खास तौर में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश के खिलाफ कोई पर्सनल शिकायत नहीं है। कांग्रेस पार्टी की कोई ऐसी मंशा नहीं है कि कोई पर्सनल शिकायत किसी के खिलाफ हो। हम केवल इतना चाहते हैं कि देखिए, 2 बातें स्पष्ट है। एक तो कोर्ट की जो समझ लीजिए जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी इंडिपेंडेंस को कांग्रेस पार्टी प्रोटेक्ट करना चाहती है। हम किसी के खिलाफ कोई पर्सनल नहीं है। दूसरी बात, हम ये भी चाहते हैं कि कोर्ट की प्रणाली स्वच्छ हो, जुडिशियल प्रोसेसेस बिल्कुल स्वच्छ हो। We want to protect the dignity of the court. We want to protect the independence of the court. That is one salutary principle. At the same time, we want to protect and ensure that the processes of the court are not polluted, that they are pure. ठीक है ना? तो कोई ऐसा मामला हमने नहीं उठाया जो पॉलिटिकल हो। ये एक हम पे आरोप सरकार लगा रही है कि हम किसी के खिलाफ हैं। जो भी मुद्दे हमने याचिका में और यो नोटिस ऑफ मोशन में रखे हैं चेयरमैन के सामने, जो उन्होंने खारिज कर दिए, वो किसी पॉलिटिक्स के साथ जुड़े नहीं हैं। कोर्ट में क्या हुआ उसके साथ जुड़े हुए हैं, क्या एफिडेविट किसी ने दिया उसके साथ जुड़े हुए हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसके साथ जुड़े हो। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। कोई एक मुद्दा ऐसा नहीं है जिसमें कोई पॉलिटिक्स हो। तो ये कोई सरकार जो हमारे ऊपर आरोप लगा रही है कि इसमें कोई पॉलिटिकल मामला है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कौन सा पॉलिटिकल मामला है जिस पे आप बात कर रहे हो। हम तो चाहते हैं कि अगर खुद न्यायाधीश ने कहा है कि मामला ठीक नहीं है, खुद कुछ लोगों ने ऐसी बातें की हैं जिससे शंका पैदा होती है, हमने नहीं की, वो उन लोगों ने की है जो कोर्ट में अपने मामले एक तरफिया कराना चाहते थे। हमने नहीं कोई ऐसी बात की। कोई ऐसी हमारी स्टेटमेंट
इस याचिका में नहीं है जिसको कोई कह भी सके कि वो राजनीति से जुड़ी हुई है। कोई ऐसा आरोप लगा ही नहीं सकता। मैं चैलेंज करता हूं। सब मामले हैं वो कोर्ट के मामले हैं। कौन केस कहां जाता है, कैसे जाता है, क्यों केस किसी बेंच में जाते हैं, ये हमारा मामला नहीं है। ठीक है ना? और कैसे कोई कोर्ट फैसला करे और बेंच चेंज हो जाता है, वो हमारा मामला नहीं है। तो इसमें कोई राजनीतिक जो आलोचना हो रही है कि हम इसीलिए कर रहे हैं, ये मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को राजनीति से और इससे कोई ताल्लुक नहीं है। केवल हम चाहते हैं कि कोर्ट ऐसा अपना कार्यकाल चलाए जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि कोर्ट इन मामलों में, पॉलिटिकल मामलों में कभी नहीं पड़ती, और जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए सिस्टम को, वो कॉन्फिडेंस हमें होना चाहिए। और ये हम कॉन्फिडेंस जो हमने चाहा है, आरोप हमने कभी नहीं लगाया। ये आरोप जजेस के द्वारा ही आया, हमारे द्वारा नहीं आया। तो ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे अहम बात है कि कौन सा ऐसा निर्णय है जो चैलेंज नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैं स्पष्टीकरण देना चाहता था आपको कि इस दौर में अब तक ये कार्रवाई हुई है, और इसलिए हम चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द जो भी ऑर्डर हुआ है जिसके अंतर्गत और जिसकी वजह से मामला 5 जजेस को गया है, हमें उस ऑर्डर की कॉपी मिलनी चाहिए। नहीं, ऑर्डर हमें पहले तो पता चले कि कौन सा ऑर्डर है, किसने किया है। Attorney General referred to a judgment of the Supreme Court which said that the Chief Justice is the master of the roster, which is right. And I said that yes, the Chief Justice is the master of the roster, and nobody can challenge that. One second. Let me. 2 things he said. This is the first thing. I said that judgment that he is relying upon relates to judicial matters, doesn't relate to an administrative order. In fact, there is no judgment in the history of the Supreme Court where on the administrative side a matter has been referred to 5 judges and we don't know how that matter has been referred to 5 judges. That's number one. Number 2, the Attorney General said that only 2 members of Parliament have challenged it. Unless 50% of members of Parliament challenged it, he had raised a preliminary objection, it should be dismissed. Now that's a statement that needs to be stated to be rejected. These are the 2 reasons he gave. Should I get back to the same point which was raised in court today, which you kept on asking for? The simple point is that everybody is well aware that this was passed, administrative order was passed by the Chief Justice. I am not aware. I know you are acting as if you are not aware. No, I don't. What are you saying? Why do you make an allegation like that? Why are you making an allegation like that? You give me a copy of that order? That's not fair on your part. You're a journalist. Don't say, no, even they were not able to tell me. I asked them, please give me a copy of that order. Right? I don't know whether they are aware or not. Even I don't know that. But I, as a litigant, have the right to be made aware of what is that order. Who has passed it? In what circumstances? And what is the tenor of that order? Look at it this way. आप इस तरफ, one second, इस दृष्टिकोण से देखिए कि कल हमने याचिका दी, आज 10:30 बजे कोर्ट नंबर 2 ने हमें बताना था क्या करना है। 6:30 बजे शाम को लिस्ट में आ जाता है कि ये तो मैटर 5 जजेस के आगे लगा हुआ है। ठीक है ना? और हमें मालूम नहीं किस आधार पे लगा। Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you will love to.